ہمیں کچھ نہ کچھ ایسا درس ملے گا کہ اپنی زندگی کو ہم سنوار سکتے ہیں۔ وہ پیغام دیا ہے جناب حضور نے، آئیے ان کے نام سے ایک نعرہ صلوات پڑھی جائے، تو جیسا کہ پنجتن سوسائٹی کی جانب سے نشر مجالس کا سلسلہ رواں دواں ہے، آج چوتھی مجلس ہے، آپ حضرات برابر شریک رہے ہیں اور مجلس کو خطاب کر رہے ہیں۔ علی جناب مولانا سید آصف حسین صاحب قبلہ مرثیے کے فرائض کو انجام دے رہے ہیں روزانہ پابندی کے ساتھ۔ علی جناب محمد علی وفا صاحب اور تمام پیش خان نوحہ خان حضرات شرکت کر رہے ہیں۔ میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ آئیے حضرات، ہم یہ چاہتے ہیں کہ وقت کے اندر اندر سارے کام ہو جائیں، سلام بھی ہو جائے، مجلس بھی ہو جائے اور نوحہ بھی ہو جائے، تو وقت نہ گزارتے ہوئے میں پیشخانی کے فرائض کو انجام دینے کے لیے ملتمس ہوں جناب ظفر بھائی سے کہ وہ تشریف لائیں، ایک نعرہ صلوات سے ان کا استقبال۔ السلام علیکم۔ کہ جانے کیسی تاثیر یہ مولا تیرے انکار میں ہے، جانے کیسی تاثیر یہ مولا تیرے انکار میں ہے، لاش بیعت کی برہنہ بھرے بازار میں، جانے کیسی تاثیر یہ مولا تیرے انکار میں ہے، لاش بیعت کی برہنہ بھرے بازار میں ہے، اور لکھنا چاہوں جو محمد تو لکھا جائے حسین، لکھنا چاہوں جو محمد تو لکھا جائے حسین، جانے یہ کیسا اثر سید ابراہیم۔ حضرات میں تو سوچا تھا کہ ظفر بھائی کچھ وقت لیں گے، بہرحال ایک نعرہ صلوات پڑھیں۔ ایک اور نعرہ صلوات پڑھ رہے ہیں۔ بزبان مولا حسین جناب خود کی فضیلت بیان کر رہا ہوں، سماعت فرمائے 4 مصروں میں۔ ایک مطلع ایک شعر کہ سحر نزدیک ہے منظر بدلنا چاہتا ہے، مولا حسین بزبان مولا حسین جناب خود کی فضیلت کہ سحر نزدیک ہے منظر بدلنا چاہتا ہے، کوئی بھٹکا مسافر ہم سے ملنا چاہتا ہے۔ کوئی بھٹکے، میں مجلس کی تمہید بنا رہا ہوں تاکہ آپ کے اذہان تھوڑا سا اوپر آئیں اور مولانا موصوف کو سنیں کہ سحر نزدیک ہے منظر بدلنا چاہتا ہے، کوئی بھٹکا مسافر ہم سے ملنا چاہتا ہے، کہا شبیر نے بیٹا علی اکبر آزادو، اندھیروں سے کوئی سورج نکلنا چاہتا ہے، کہا شبیر نے بیٹا علی اکبر آزادو، اندھیروں سے کوئی سورج نکلنا چاہتا ہے، کوئی بھٹکا مسافر ہم سے ملنا چاہتا ہے۔ آئیے حضرات میں بسط ادب گزارش کروں علی جناب مولانا سید آصف حسین صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں، نعرہ صلوات سے ان کا استقبال۔ حبیب خدا ختم انبیاء بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ،
لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي بالقاسم الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. السلام مسلسل آپ کی خدمت میں حصہ وافی ہدایت کے ذیل میں جو بیان آغاز محرم سے جاری ہے اس کا وہ آج چوتھے مرحلے میں ہے تقریباً. آپ سے التماس اور گزارش وقت اتنی ہے جو لوگ یہاں پہ ہیں وہ بھی اور جو ہمیں آن لائن ہم سے متصل ہے دیکھ رہے ہیں مجلس میں شریک ہیں ان سب سے میری برابر یہی گزارش ہے کہ چونکہ ہمیں اس سال کا 1442 کا محرم جو ہے بہت کچھ سوچنے میں مجبور کر رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں کبھی بھی حالات جیسے بھی ہوں جس طریقے کی بھی ہوں ہمیں عزاداری کے سلسلے سے ادا کے سلسلے سے مایوسی کا شکار نہیں ہونا ہے کیونکہ یہ وعدہ الہی بھی ہے اور وعدہ شہزادی کونین بھی ہے. وہ سارے اسباب کو فراہم کر دیں گے اور اس کے لیے اسباب مہیا ہو جائیں گے زمانہ کیسے بھی ہو. اور وہی بات ہے کہ زمانے کو جس نے زمانے سے لیا ہے وہ پریشان ہو تو ہو. ہم نے زمانے کو زمانے سے نہیں لیا بلکہ امام زمانہ سے لیا ہے. کبھی بھی کسی حالت میں نہیں جاتے نہ ہم مایوس ہوتے کہ اب یہ کیسے ہوگا اور یہ ہوگا. ٹھیک ہے ایک امتحان تھی آزمائش تھی اور جیسا کہ میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں مجلسوں میں کہ شاید کہ یہ وہ حسرت تھی شہزادی جناب زینب کی کہ گھر گھر بھیا کی ادا ہو. وہ گھر گھر انشاءاللہ تعالی پیغام حسینیت پہنچ رہا ہے اور پہنچے گا. سورہ مبارکہ جمعہ ہے جس کی میں نے اس ابتدائی آیات کی جو تلاوت کی ہے اور یہ وہ سورہ ہے جس کو مسلمان کم از کم ہفتے میں صحیح اگر پڑھتا نہیں تو سنتا ضرور ہے. مسلمان کم از کم ہفتے میں سنتا ضرور ہے. یا یوں کہہ لوں کہ اگر کوئی اور سورہ ہوتا تو کہہ کے بچ سکتا تھا کہ شاید کہ یہ آیات ہمارے نظروں سے نہیں گزری لیکن سورہ مبارکہ جمعہ وہ ہے کہ ہر ہفتے ٹہو کے دیتا ہے مسلمان. اس میں دو باتیں خاص طور سے قابل غور ہے وہ یہ کہ اللہ نے اپنے حبیب کا تعارف کرایا ہے. آج اس میں مسئلہ یہ ہے کہ دنیا اسلامی نے حضور کے ساتھ ہی انصاف نہیں کیا تو باقی ہستیوں کے ساتھ کیا انصاف کرے گا. اصل جھگڑا تو یہاں ہے کہ ابھی تو حضور کے ساتھ ہی صحیح سے انصاف نہیں کی. اگر اور پھر وہ بات خاص طور سے جب ہمارے کچھ مولائی لوگ کرتے ہیں کہ ابھی مولا کو نہیں سمجھ سکتے لوگ مولا کو نہیں سمجھ. میں کہتا ہوں ابھی تو حضور کو ہی نہیں سمجھ. حضور نے تو تعارف میں بھی یہی کہا تھا نا من کنت مولاہ فہذا علی مولا. من کنت مولاہ اور ہمارا ہر بچہ جب سے مجلسوں میں آگے بیٹھتا ہے اور تھوڑا سا بھی اسے شعور ہوتا ہے تو کم از کم اس ترجمے سے تو آشنا ہے وہ حضور نے جب فرمایا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا جس جس کا میں مولا ہوں جس جس کا
और ये बड़े उससे तर्जुमा होता है, और हमारा हर खतीब, हमारा हर आलिम, हमारा हर जाकिर यही तर्जुमा करता है, जिस जिसका मैं मौला हूँ, और इस पे बड़ा जोर देके कहता है जिस जिसका मैं मौला हूँ। यानी हुजूर ने तो पहले ही क्लियर कर दिया, ना मैं सबका मौला हूँ, ना अली सबके मौला। तो अब इसमें परेशानी की क्या बात है कि लोग नहीं समझ रहे हैं, अभी विलायत उन तक नहीं पहुंची है। नहीं, अभी तो हुजूर ही नहीं समझ में आए हैं। जब हुजूर समझ में आएंगे ना तो अली समझ में आएंगे। जिस जिसका मैं मौला हूँ उसके लिए अली मौला है। तो अजीजों, अभी तो बात यहीं पे रुकी हुई है। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जो कुछ भी जमीन और आसमान के माबैन है सब तस्बीह इलाही में मसरूफ है। वलो कि उनकी तस्बीह को हम नहीं समझ रहे, हम नहीं दर कर पा रहे हैं कि वो किस तरीके की तस्बीह करते हैं। हत्ता कि जो जानवर है ना, उनकी भी जो तस्बीह होती है उन्हें हम समझते हैं क्या? हालांकि मखलूकात में कोई शय ऐसी नहीं है जो तस्बीह इलाही में मसरूफ ना हो। वो अपने अंदाज की तस्बीह हो सकती है, उसको हम नहीं दर्क कर सकते, हम नहीं समझ सकते। जर्रात जिनके बारे में आपको पता है कुछ भी नहीं है, बेसुर हरकत पड़े हुए हैं, वो भी तो तस्बीह है, तस्बीह में वो भी मसरूफ है। अगर तस्बीह न कर रहे होते, हाँ ये और बात है कि आपकी समझ में आए या ना आए, वो भी मौके की तलाश में रहते हैं कि कब तस्बीह करनी है। बेशक बेशक। आपके हाथों में तस्बीह करते हुए नजर ना आए, लेकिन कोई तो हाथ होगा जिस पर आने के बाद वो तस्बीह कर रहे होते हैं। आपको नजर नहीं आ रहा है को किस तरीके की तस्बीह है, लेकिन जिन्हें हाथों में उठा के और वो दुनिया को दिखा रहे हैं, वो देखो संग्रेजे इस तरीके से कलमा पढ़ रहे हैं। तो अब आप सोचिए कि जब हर जर्रा जो है तस्बीह में मसरूफ है, तो हमारी भी एक ड्यूटी है जो तस्बीह की है। लेकिन उस तस्बीह में मैं कल भी अर्ज कर रहा था, अक्सर ये होता है शहजादी कौनैन के नाम से मंसूब उसको बहुत तेजी से पढ़ते हैं, और कभी कभी इतनी तेजी से पढ़ते हैं हमें खुद नहीं याद होता कि मतलब सही से पढ़ लिया या नहीं पढ़ लिया। हालांकि वो 34-33 का मामला है। हमारी नजरों में ऐसा लगता है कि भाई चलो 34 से ज्यादा हो जाए, 34 से कम हो जाए, क्या फर्क पड़ता है, या 100 एक तस्बीह जो है 100 की है तो कोई बात नहीं, 101 110 भी हो जाए तो कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। लेकिन अगर मेरी मजलिस का वो जुमला, अगर जो लोग यहाँ थे वो तुमको तो याद होगा, आगे बहजत से भी किसी ने पूछा था कि सरकार भाई अगर ये तस्बीह जो हम पढ़ते हैं अगर ज्यादा हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है? और अल्लाह ही का तो नाम है, उसी की तो तारीफ है, उसी की तो तमजीद है। अगर थोड़ा ज्यादा हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है? उन्होंने कहा नहीं, फर्क तो कुछ भी नहीं पड़ता, लेकिन बहुत बड़ा भी फर्क पड़ता है। कहा वो कैसे? कहा मैं रोज हरम जाता हूँ मासूम कुम की ज़ियारत के लिए, रोज जाता हूँ। मसलन मेरे घर से हरम और हरम के अंदर रखी हुई जरी 500 कदम पे है, मेरे 500 कदम पे मेरा हाथ जो है जरी से मस होता है। जरी से कम मस होता है जब मैं 500 कदम चल लेता हूँ। लेकिन जिस दिन मैं 475 कदम चलूंगा तो क्या जरी तक मेरा हाथ पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा ना, क्योंकि अब ठीक 500 कदम पे अगर जरी पे मेरा हाथ पहुंच रहा है तो 475 कदम पे तो मैं दूर ही रहूंगा ना, जरी तक तो हाथ नहीं पहुंचेगा। बस वही हाल तस्बीह का है, कम और ज्यादा में फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जितना बतलाया गया है मासूम ने, जितना कहा है, मकसद उतने में मिलने वाला है। आप अपनी मर्जी से न इजाफा कर सकते हैं न कम कर सकते। जब हम अपनी मर्जी से, तवज्जो चाह रहा हूं, जब हम अपनी मर्जी से एक तस्बीह में भी इजाफा और कमी नहीं कर सकते तो दीन में हमें किसने अथॉरिटी दिया है कि कमी और ज्यादती करो? जो अहले बैत से हमें मिला है वही है हमारे पास दीन। तो अजीजों, हुजूर उस, कल मैंने गुफ्तगू यहाँ छोड़ी थी, उससे मुत्तसिल हो जाऊं कि हुजूर जिस माशरे में आ रहे हैं, जिस माहौल में आ रहे हैं, जिस समाज में आ रहे हैं, वो माशरा और समाज ऐसा है जिसे बेरहम माशरा कहा जाए। बेरहम माशरा, ऐसा बेरहम, ऐसा सफाक माशरा जहाँ बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता हो। जिंदा दरगोर ही नहीं कर दिया जाता हो बल्कि उसका जश्न मनाया जाता हो। ऐसे बेरहम माशरे में मैं कहता हूँ अरहमुर राहिमीन का तारुफ करा देना ही हुजूर की तबलीग नहीं बल्कि तबलीग का मौजज़ा था। वरना 23 साल की ये तबलीग जो है कोई तबलीग नहीं बल्कि ये तबलीग का मौजज़ा है। क्या ऐसे बेरहम माशरे में अरहमुर राहिमीन का तारुफ करा देना?
जहाँ सफाकी का ये आलम हो कि बेटियों को जिंदा दरगोर कर देते हो। हम लोग तो सुन लेते हैं फकत या पढ़ लेते हैं किताबों में, कैसा समाज था, ऐसा माशरा था, और गुजर जाते हैं, हमें तो ख्याल भी नहीं आता। ऐसे बेरहम माशरे से क्या आप तवक्को करते हो हुजूर की कितनी इज्जत करते होंगे? अगर ऐसे बेरहम माशरे से अगर आपको ये तवक्को हुजूर की, आप जब एक वाक़या जो पढ़ा जाता है, मुसलसल दोहराया जाता है कि साहब बुढ़िया ऐसा करती थी, एक बुढ़िया का जिक्र आ गया, न जाने कितनी बुढ़िया थी, एक कतवा गया, आज तक किताबों में आ गया, वो साहब उस सिलेबस में पढ़ा जाने लगा, बुढ़िया ऐसा करती थी। क्या करती थी बुढ़िया? कूड़ा फेंक देती थी और हुजूर उसी रास्ते से गुजर जाते थे। कूड़ा फेंक देती, हुजूर उसी रास्ते से। मैंने या रसूल अल्लाह, ये अगर उसका इसका रोज का काम था तो आप ही रास्ता बदल देते। जब आपने देख ही लिया कि ये इसी पे आई हुई है कि मैं जैसे ही इधर से गुजरूंगा वो कूड़ा फेंकेगी, तो आप रास्ता बदल देते, चेंज कर देते, क्या बात, किसी दूसरे रास्ते जाते। काम है रास्ता बदलने नहीं, बल्कि रास्ता बदलवाने। हादी का काम रास्ता बदलना नहीं होता। अगर हादी छोटी छोटी बातों से रास्ता बदलने लगे तो फिर रोज एक नई रास्ता इख्तियार करना होगा। और उम्मत कभी भी इतनी ज्यादा मासूम नहीं रही है जितना आप ख्याल कर रहे हैं। मैंने किसी अशरे के दौरान एक जुमला दोहराया था, हमारे चंद मुबल्लिगीन ऐसे हैं कि थोड़े दिनों के बाद वो कहने लगते हैं, अरे इतने दिन से मैं एक ही बात कह रहा हूँ, कोई मान नहीं रहा है, कोई सुन नहीं रहा है, किसी पे असर नहीं हो रहा है। मैंने कहा अपनी बात मत कीजिए, आपको उम्र ही अल्लाह ने कितनी दी है, बहुत दी है तो 90 और 100 साल। 900 साल तबलीग करने के बाद, 900 साल 900 ईयर तबलीग करने के बाद जनाब नूह का आलम ये है कि उतने से लोग आए थे जो कश्ती में बैठे थे। क्या बात, आप किस उसमें घूम रहे हैं कि पूरी दुनिया आपके ताबे हो जाएगी? इतने दिनों की तबलीग के बाद ये आलम था कि सिर्फ कश्ती में आने वाला। अच्छा, उसमें भी कोई आता ना आता, कोई इतना जरा मसला भी नहीं था, घर वाले ही नहीं आए। आज हमसे कहा जाता पहले अपने घर को देखें, पहले अपने घर में तबलीग करें, फिर बाद में बाहर जाएं। मैं तबलीग में दिखा रहा हूँ आपको कि तबलीग का मरहला कितना। अच्छा, एक चीज और भी है, आजकल भी अब सारे नौजवान बैठे हुए हैं, अब इनके सामने मैं एक बात कहूँ, मुझे जितना तजुर्बा हुआ अपने इस छोटी सी लाइफ में या जिंदगी में या इस जगह पे आते आते, ये बहुत बड़ा वो है मरहला। यहाँ पे आना जो है ये कोई आसान चीज नहीं है। यहाँ पे जो आता है, अगर जिम्मेदारी समझ रहा है, अगर जिम्मेदारी समझ रहा है तो यहाँ पे बैठना कोई आसान मरहला नहीं है। क्यों? इस वजह से कि एक खतीब का, हमारे अल्लाह उनको गरी करे, उनका बड़ा प्यारा जुमला था, अब इस जगह पे सारे नौजवान बैठे बात दिया कर रहा हूँ। वो कहा करते थे कि अगर आपको इस बड़े मजमे ने अगर यहाँ बिठा दिया इस जगह पे, तो आपके ऊपर जिम्मेदारी भी बहुत दे दी उन्होंने। इसमें खुश ना होइए कि यहाँ बिठा दिया, आपके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ जो है वो पूरी तरीके से आपके ऊपर बारहगिरा की तरह है। ये आप इसको संभालना कैसे? तो एक बड़ा प्यारा जुमला कहते थे, वो कहते थे कि फिर आपको संभालने के लिए इतना होना चाहिए कि जो आपको यहाँ बिठाया ना, 2 दीने पे 3 दीने 4 दीने ऊपर बिठा दिया आपको, तो उनमें और यहाँ आने में कुछ फर्क तो होना चाहिए ना। जो यहाँ आ गया तो कुछ फर्क। तो वो कहते थे अगर ये नमाज़े पंजगाना पढ़ के आ रहे हैं तो आप नमाज़ें सब पढ़ के आइए, इससे ज्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता। फिर ये सारी शिकवे शिकायत सब दूर हो जाएंगे। बस इतना आपको करना है कि अगर ये नमाज़े पंजगाना पढ़ के आ रहे हैं तो आपको नमाज़ें सब पढ़ के आना होगा, तब फिर ये सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी। फिर आप वाकई भी जो कहेंगे तो फिर वो उसी तरीके से उसी अंदाज से देंगे। लेकिन एक चीज है मेरे नौजवानों, एक चीज समझिएगा, और आज के क्योंकि ऑनलाइन मस्जिद जा रही हो पूरी दुनिया में, पता नहीं कहाँ कहाँ कौन देख रहा होगा कौन नहीं देख रहा हो, इससे बहस नहीं, मगर जा रही ऑनलाइन, कोई भी देख सकता है। तो भाई पैगाम भी है इसमें। आज का दौर जरा मुश्किल दौर, कल के हमारे जो खुतबा, हमारे ज़ाकिरीन, हमारे उलमा जो गुजरे, उनके लिए यूँ कह लें कि थोड़ा सा आसान दौर था। मैं जहाँ तक जिस नतीजे पहुँचा अपने तजज़िये के, उसकी वजह ये है कि उस वक्त मजलिसें होती थी ठीक है, जिनके हाफिजे मजबूत थे उन तक तो बात रह जाती थी, जितना जिसका हाफिजा था उसका मजबूत किया चला जाता था। लेकिन बात में होता ये था कि थोड़े दिनों के बाद तकरीर लोग भूल जाते थे। आज तो इधर आप कहिए बस कहिए कि वो फला का मतलब याद है आपको 2000 उन्होंने क्या पढ़ा था, भाई हमें तो याद नहीं, अभी मैं दिखाता हूँ ये पढ़ा था उन्होंने, अभी मैं 99 की उनकी वो मस्जिद दिखाता हूँ अभी। तो अब तो मसला ये है कि अब तो दूर रहा ही नहीं कुछ। पहले तो जाके कीबोर्ड पे बैठना पड़ता, तो कीबोर्ड की भी जरूरत नहीं, आपके साथ ही हमरा चल रहे जैसा,
ये तो फौरन आपको उसी वक्त दे देते हवाला, ये लीजिए। तो अब जरा मुश्किल दौर है। अब इसमें हमारे खुतबा को, हमारे जितने भी वाहिदीन हैं, जितने भी हमारे उलमा हैं, बसअदब उनसे गुजारिश ये है, कोई भी बात करने से पहले पूरी जिम्मेदारी के साथ बात करें, पूरी जिम्मेदारी से, क्योंकि एक लफ्ज इधर से उधर हुआ मामला तो कहीं ना कहीं पहुंच जाएगा। आज इस जगह पे मैं सहारा लूंगा खतीब अकबर के जुमलों का, अल्लाह उनको गरीब की रहमत करे, उनके दर्जात को बुलंद करे। वो अपने तजुर्बे का निचोड़ बता रहे। एक दिन कहने लगे, मुझसे अगर कोई पूछे कि जाकिरी के फॉर्मेट में कौन सा मुश्किल फॉर्मेट है, खिताबत के फॉर्मेट में कौन सी, जैसे एक होता है भी हमारे यहाँ भी तकसीम है ना, मजमा भी तकसीम कर लेता है, अरे ये तो मतलब वो तबलीगी मजलिस से पढ़ते, वो फला जो है वो मतलब फजाइल वाली मजलिस से पढ़ते। अच्छा, हालांकि ये तकसीम जो आप कर रहे हैं हो सकता है कि वो कहीं कहीं फिर भी नहीं बैठती, मगर करते हैं कैसा ये पढ़ते हैं। तो वो कहते थे कि अगर मुझसे कोई पूछे, गौर से सुनिएगा मेरी बातों को, इसमें बहुत बड़ा मसला हल हो जाएगा। अगर कोई मुझसे पूछे कि इतने बड़े तजुर्बे के बाद, जो आपको 50, 60, 70 साल तजुर्बा मिला है, इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि आसान फॉर्मेट कौन सा है, वो वाला, फजाइल वाला या तबलीग वाला, तो मैं कहूंगा कि तबलीग वाला फॉर्मेट। हम लोग पूछते थे कि अरे आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये मुश्किल है। कहा जैसे सर्जरी के लिए, एक सर्जन के लिए, तो कोई भी सर्जन हो उसके लिए सर्जरी करना मतलब आसान होता है, लेकिन आज के दौर में दिल की सर्जरी आसान हो गई है बनिस्बत ब्रेन की। क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जरा सा गौर कीजिए इस बात को। कहते थे कि दिल की सर्जरी आज के दौर में बिल्कुल, अभी ओपन हार्ट सर्जरी हो ही रही, बिल्कुल आसान भी हो गई। मौला तमाम मोमिनीन को शिफा दे, बिल्कुल बिल्कुल आसान मरहला हो गया। आदमी गया, चलो ठीक है, मतलब तकलीफ जो भी है, लेकिन एक सर्जन के लिए आसान मरहला है, क्योंकि जितनी टेक्नोलॉजी इस वक्त है उससे आसान है। लेकिन ब्रेन की सर्जरी मुश्किल है। एक माहिर तरीन सर्जन ही ब्रेन की सर्जरी करता है, उसकी वजह बड़ी बारीक से होती है। जरा सा भी अगर इधर उधर हो गया मामला, तो फिर या तो फिर अल्लाह ही को प्यारा हो गया, या तो फिर रहा तो फिर किसी काम करेगा। वो कहते थे कि जाकिरी की फॉर्मेट में ये दोनों चीजें ऐसे ही हैं। अगर कोई फजाइल पढ़ रहा है तो वो ऐसे ही है कि आज के दौर में आसान इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि फजाइल जिनके हैं उस पर तो आप खामोश रह ही नहीं सकते। फजाइल तो ऐसे हैं कि अगर पढ़ने वाला सही से पढ़ने वाला है तो जाहिर है कि आप तो चाहे वाह करें, चाहे नारे लगाएं, कुछ भी करेंगे, क्योंकि फजाइल जिनके पढ़ रहा है वो बहुत बादमंद शख्सियात है। लेकिन अगर वो किसी को तबलीग कर रहा है तो वही मजमा घूम के सबसे पहले उसे देखता है कि जो कह रहा है उस पर खुद भी अमल कर रहा है या नहीं कर रहा है। और वाकई उनका तज़किया बिल्कुल सही था। अगर आप किसी को किसी चीज की तबलीग करें तो सबसे पहले तो पलट के वही देखेगा, अरे मौलाना कह तो रहे हैं, खुद तो अमल करते नहीं, पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं। अच्छा, फिर उसमें भी वही बात उन्होंने कहा कि अगर माहिर सर्जन नहीं हुआ तो ब्रेन की सर्जरी में वो गलती कर देगा, या तो उसकी जान ही चली जाएगी, या तो फिर वो जिंदगी भर के लिए मफलूज हो जाएगा। और आज बड़ी माजरत के साथ ये शोभा जो मुश्किल था ना, अनाड़ी लोगों के हाथों में आ गया। मैं खुलासा कर चुका, कि बिल्कुल अनाड़ी लोगों के हाथों में आ गया, जिनको कुछ भी पता नहीं है कि वाकई तबलीग होती कैसे है। अब उस तबलीग के जोम में कभी कभी वो बातें वो कर जाते हैं जिससे पूरी कौम में इख्तिलाफ हो जाता है, पूरी कौम में इख्तिलाफ हो जाता है, और कौम दो हिस्सों में बढ़ जाती है, क्योंकि उनको तजुर्बा नहीं इस बात का। तबलीग के जोम में वो बातें कहेंगे कि जिसका ना कहीं सर है ना कहीं पैर है, और कौम जो है दो हिस्सों में बढ़ गई। ओ साहब उनको है कि भैया मैं तो तबलीग कर रहा था ना। ऐसी तबलीग क्यों? इस वजह से कि ये भी अंदाज जो है आपको कहीं और से नहीं लेना है, इसी घराने से लेना है कि किसी को तबलीग कैसे की जाए। आपसे बड़ा है, आपसे बुजुर्ग है, आपको कैसे, आप कैसे उसे कहेंगे कि कोई बात कहनी है। अच्छा, बाज़ लोग बदों में तबलीग जो है कभी कभी ये भी नहीं देखते कि मोमिन का दिल दुखाना भी बहुत बड़ा गुनाह है। ऐसा नहीं है कि आप किसी के दिल को दुखा के गुजर जाए तबलीग के नाम पे कि जी हम तो तबलीग कर रहे थे। आप तबलीग नहीं कर रहे थे, मोमिन को अज़ियत दे रहे थे। और मैंने तो बारहा देखा ये सब मनाज़िर मेरी आंखों के सामने।
ठीक है आप नमाजी हैं, आप रोजेदार हैं, आप मुत्तकी हैं, लेकिन दूसरे को इख्तियार आपको नहीं दिया गया कि मतलब इस तरीके से आप कोई बात करें। उसकी भी कहने का तरीका है। अरे आप और हमारी हैसियत ही क्या है, मासूम जो बराह रास्त किसी को टोक सकता है, बराह रास्त किसी को टोक सकता है। वो जा रहे हैं और देख रहे हैं कि एक बुजुर्गवार जो है गलत वजू कर रहे हैं, और हमारा तो आलम ये है कि जरा सा भी देख लिया किसी को थोड़ा सा, अरे साहब अभी तक ये देखिए इतनी एज हो गई इनकी, मुंह पे ही कहना शुरू कर दिया। मौला चाहते तो क्या नहीं कह सकते। कहे बुजुर्गवार हम दोनों वजू कर रहे हैं, आप देख के बताइए किसका वजू सही है। क्या मौला टोकते तो कोई बुरी बात नहीं, वो तो सराखों पे वो कहता कि मौला आपने तो बड़ा अच्छा करके मुझे बता दिया, लेकिन ये हमें बतलाना मकसूद था कि किसी को तबलीग भी करना है तो किस अंदाज से तबलीग करना है। तो मैंने कहा ना कि इतना आसान मरहला तबलीग का है नहीं जितना लोग आसान समझ के इसमें कर दो। दाखिल होते हैं और दाखिल होने के बाद कुछ बातें ऐसी करते हैं कि बस ना पूछिए। वो बातें तो मैं नहीं छेड़ूंगा इस वजह से कि तबलीग की बात आई थी तो इस वजह से कह रहा हूँ कि हुजूर बार बार अगर उधर जा रहे हैं उसी गली से, मैंने कहा या रसूल अल्लाह छोड़ दीजिए, अब ना जाइए उस गली, जब ऐसा ही कर रही तो क्यों जा रहे हैं आप। कहा मैं रास्ता बदलने के लिए नहीं आया। एक दिन वो आता हुआ कूड़ा रुक गया। अब क्या होना चाहिए था, चले अल्लाह शुक्र है तेरा कि कल तक जो इस हद तक उतर आई हो कि कूड़े फेंक रही है, आज नहीं आया, इत्मीनान करना चाहिए था। लेकिन अब पता कर रहे हैं कि वो है कहाँ भाई, वो कहाँ है। किसी ने या रसूल अल्लाह वो तो बीमार है, बीमार है, गए हाजत के लिए चले गए। अब जाहिर की इंसानी नफ्सियात है, ऐसे वक्त में कोई भी होता तो यही जुमले निकलते हैं। अब आए हैं जब हम बिस्तर पर हैं, मुझसे बदला लेने के लिए उस वक्त आए जब हम बिस्तर पे हैं। हुजूर ने फरमाया बदला लेने के लिए नहीं बल्कि तेरी अयादत के लिए आया हूँ। सुभान अल्लाह। अब आप समझे, जो दुनिया कहती है इस्लाम तलवार के जोर पे फैला, इस्लाम तलवार के जोर पे नहीं फैला, इस्लाम किरदार मोहम्मद व आले मोहम्मद। जो मुअल्लिम में किताब बन के आया हो, जो तज़किया नफ्स करने के लिए आया हो, उससे बेहतर कौन तज़किया कर सकता था। और इसी आयतों में मैंने उस दिन भी कहा था कि जो मुअल्लिम बन के आया था उसी को लोगों ने, दुनिया ने इस तरीके से पेश कर दिया कि वो तो लिखना ही पढ़ना नहीं जानते। जो मुअल्लिम बन के आया था, युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन, तुम्हें किताब और हिकमत की तालीम इस तरीके से देगा हालांकि तुम गुमराही में मुब्तला हो चुके, जलालत में डूबे हुए। ऐसे में किताब और हिकमत की तालीम देने के लिए वो आया है। और किताब और हिकमत की जो तालीम देने के लिए आया हो वो दुनिया के किसी मकतब में नहीं जाता पढ़ने के लिए, जिसे अल्लाह ने भेजा ही हो किताब और हिकमत की तालीम देकर। और भाई लोगों ने शायद सोचा था कि हुजूर को अगर देखते ही किसी मकतब में गए, जाते हुए देखते, पढ़ते हुए देखते, तब समझते कि हुजूर फला मकतब से पढ़ के आए। और शायद इसीलिए एक वजह भी समझ में आती है कि इस अपने अकीदे को, अच्छा कुछ अकीदे इनके ऐसे बने, और मैं क्या अर्ज करूँ आपकी खिदमत में कि कभी कभी सुनने में हंसी भी आती है और हैरानी ये होती है कि अकीदे ढाले की जगह गए। जो करता है अल्लाह करता है, ये भी एक अकीदा है। बंदा तो बंदा महज मजबूर बेचारा, वो क्या करे, वो जो भी करता है अल्लाह करता है। सुना नहीं सुना, खामोश तो ऐसे हैं कि जैसे कि मैं कोई दूसरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। मसला ये है भाई, क्या 3-4 दिन हो गए कोई दिखता नहीं था, तो मैं तो उसी मोड में था। आज ऑनलाइन है, हाँ आज तो माशाल्लाह से आप सब सामने हैं। मोहम्मद वाले मोहम्मद बावाज़े बुलंद सलवात। इसका मतलब ये है कि तजुर्बा ठीक है। इंशाअल्लाह ताला कल से आप लोग भी पाबंदी से आइए इंशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह हाँ, क्योंकि बाकी की मजलिसें जो है ठीक है, ऑनलाइन भी मजलिसें तो हो ही रही है, लेकिन बहरहाल कहना वही कि जो मजा ऐसे सामने से चाहे पढ़ने वाला हो चाहे सुनने वाला हो, दोनों बात है।
तो मैं क्या अर्ज कर रहा था कि यदि एक अकीदा जहाँ ये है कि हुजूर के लिए ये ढाला गया, फिर हुजूर तक बात नहीं रही, बात और ऊपर तक लेके गए। अरे बंदा तो बंदा है, महज बेचारा क्या करे, वो तो मजबूर है, जो करता है अल्लाह करता है। ये भी उसी फैक्ट्री से ढाला गया जहां से बहुत सारे इस तरीके के अकीदे ढले। किसी बंदे को बचाने के लिए ये गढ़ा गया कि जो करता है अल्लाह करता है। ये बेचारा क्या करे, इसने तो कुछ किया ही नहीं। एक पत्ता भी अगर हिलता है, और यकीन जाने की ठीक है, ये तो सही है कि पत्ता भी हिलता है तो उसकी मर्जी से हिलता है, बेचारा हिल कहाँ सकता है। बेहरकत जो चीज है उसको हिलने के लिए तो इज्न चाहिए। अरे आप जब हिल रहे हैं, आप जब हरकत कर रहे हैं, ये तो समझ में आता है कि आप अपनी मर्जी से हरकत कर रहे हैं। ये सब दुनिया जानती है आप मर्जी से हरकत करते हैं। इसको भी आप ढाल दें कि जो करता है बस अल्लाह करता है। किसी ने मौलाए मुत्तकियान अली इब्न अबी तालिब, मौला बंदा मजबूर है या बाइख्तियार, क्या पूछा उसने। इनके यहाँ एक जो एक अकीदा है जब्र इख्तियार का, उसमें वो कहते हैं कि बंदा महज बेचारा मजबूर है, ये कुछ नहीं करता, जो करता है अल्लाह करता है। तो उसने मौला से पूछा, मौला क्या वाकई बंदा जो है मजबूर है या बाइख्तियार है। तो आपने फरमाया कि तफसीली जवाब चाहता है या मुख्तसरन जवाब चाहता है। उसने कहा कि तफसीली का तो वक्त नहीं है, मैं अपने काम पे जा रहा हूँ, मौला हमें मुख्तसर जवाब दे दीजिए। मौला ने कहा कि ठीक है, तेरे पास वक्त नहीं है तो मुख्तसर जवाब, कितना मजबूर है और कितना बाइख्तियार है वो। मौला फरमाते हैं कि अगर ये तू पूछ रहा है कि कितना मजबूर है और कितना बाइख्तियार है तो खड़ा है ना। उसने कहा हाँ मौला। का एक पैर उठा, उसने एक पैर जल्दी से उठा लिया। का दूसरा पैर उठा, कहा ये कैसे उठा सकता हूँ मौला, अरे ये हमारे कहा इख्तियार में। मौला ने कहा कि बस इतना ही बंदा मजबूर है और इतना ही बाइख्तियार है, ना मुकम्मल मजबूर है ना मुकम्मल बाइख्तियार। अरे हैदरी, अरे वो तो मौला ने जवाब दिया था, मैं तो आपसे सवाल करता हूँ, आपके वजूद में जितनी नेमतें हैं वो बहालत मजबूरी है या बहालत इख्तियारी है। उस पे मजबूर हैं आप या बाइख्तियार हैं। अब पूछता हूं मैं आपसे, आपकी आंखें मजबूर हैं या बाइख्तियार। अगर कहते हैं कि बाइख्तियार है तो मैं आपको पलट के यही सवाल करता हूं कि अगर बाइख्तियार है तो मजबूर भी इतनी है कि अगर ये काला पर्दा है तो इसको काला ही देखेंगे, नीला नहीं देखेंगी। जिस दिन नीला देखने लगेंगी उस दिन आंखों की फिर खराबी जाहिर हो जाएगी, उसको बनवाना पड़ेगा लखनऊ की जबान पे, आंखें बनवाने गए। ये मजबूरी है आंखों की कि अगर काला है तो काला ही देखे। ये जबान की मजबूरी है कि अगर मीठा है तो मीठा ही चखे। ये कान की मजबूरी है कि आवाज अगर शीरी है तो शीरी ही सुने। लेकिन इन्हीं आंखों को, इन्हीं कानों को, इसी जबान को बाइख्तियार ऐसा बनाया है कि चाहो तो अच्छा सुन लो, चाहो तो बुरा सुन लो, चाहो तो अच्छा चख लो, चाहो तो बुरा चख लो। मौलाना ने कहा समझ में आया कि कितना मजबूर है, कितना बाइख्तियार है। उसने कहा हाँ बिल्कुल बिल्कुल मौलाना समझ में आया। अच्छा, इस तरीके की जितनी चीजें होती थी ना मासूमीन के सामने कि बिल्कुल आने वाला कहता था बिल्कुल अभी अभी ऐसी जवाब चाहिए मुझे, हाँ ज्यादा तफसीली जवाब नहीं। जैसे आजकल भी कहते हैं ना मौलाना साहब भाई बहुत मतलब गाढ़ी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल हल्की है, रेडीमेड। तो अब अच्छा, मगर इस अकीदे को और अगर आप आगे बढ़ाए ना, ये किस लिए हुआ, ये हर अपने जालिम हुक्मरान को, जाबिर हुक्मरान को बचाने के लिए, उसके हर फेल को जाहिर बनाने के लिए कहा गया जो कुछ भी करता है अल्लाह करता है, ये क्या करे। ये पूरी तारीख है, चाहे तारीख बनी उमैया उठा ले, चाहे तो तारीख बनी अब्बास उठा ले, कुछ भी ये करते थे उसको ढाल के ये कह दिया जाता था इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने तो करता है बस। मैंने कहा अच्छा, इसी अकीदे पे कायम रहना कि जो कुछ भी करता है अल्लाह करता है। अब अगर हम किसी दुश्मन अहले बैत पर लानत भेजे,
अगर इतना ही वो है कि हर जो है वो हर काम जो है उधर जाके नहीं ये तो वो अच्छा कुछ चीजें ऐसी है वाकई माशरे में जब राइज हो जाती है कोई इस पे ज्यादा पड़ताल भी नहीं करता कि ये क्या मतलब क्यों हुआ ऐसा। जोड़े आसमानों में बनते हैं, सुना है ना, जोड़े आसमानों में बनते हैं। अच्छा इतना मशहूर हो जाता है ये मुहावरा जिसे कहा जाए कि फिर वो तो फिर पूरे माशरे में फैल जाता है। भाई बात यही है कि जोड़े तो आसमानों में बनते हैं, इनका पंच छुपा होगा जोड़ा। अच्छा भी जब जोड़े आसमानों में बनते हैं तो जमीन में तोड़ने का इख्तियार आपको किसने दे दिया? आसमान में बनने वाले जोड़े को आपको किसने इख्तियार दे दिया? ये भी कहीं से ढाला गया किसी फजीलत को छुपाने के लिए। जोड़े कहीं आसमानों में नहीं बनते हैं। अल्लाह ने फकत एक जोड़ा इस तरीके के बहुत सारी मिसालें हैं। मैं मिसाल पे आ जाऊं तो मतलब बहुत तफसील हो जाएगी। तो ऐसे में ऐसे हालात में मैंने कहा कि जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है खतीब की कि यहाँ से जो गुफ्तगू हो वो गुफ्तगू ऐसी नहीं होनी चाहिए कि कौम जो है मुंतशिर हो जाए, कौम जो है बढ़ जाए। हर चीज की एक हद है, हर चीज की एक हद है। आप ये समझ लीजिए अभी जब से ये बीमारी चली है अल्लाह इसको जल्द से जल्द तमाम इंसानियत को इससे नजात दे। हाँ क्योंकि सारी इंसानियत परेशान है, किसी एक गिरोह की बात नहीं, सारी इंसानियत परेशान है। अल्लाह इसको जल्द से जल्द जो है वबा का खात्मा फरमाए। जब से ये शुरू हुआ है अब आप देखिए कि इन हालात में भी कहते हैं कि मौके जो है परवरदिगार पैदा करता है। जिन हालात से हम गुजरे पिछले दिनों में, लेकिन क्या अदादारी रुकी? नहीं रुकी। ठीक है ऑनलाइन हो रही थी, जितने लोग देख पा रहे थे, नहीं शिरकत हो पाई कोई बात नहीं, लेकिन अदा नहीं रुकी। या जितने भी काम हैं वो क्या रुक गए? जिंदगी तो वैसे ही रवा दवा है ना। ये और बात है कि हम थोड़ा सा गफलत पे जरूर है, बड़ी तेजी के साथ जमाना गुजर रहा है, ये भी आप तो सोच लीजिए। ये आप इस उसमें ना रहिए कि जमाना जो है हमारी रफ्तार से बिल्कुल वैसे ही चल रहा है जैसे हम इत्मीनान से चल रहे हैं। जमाना तो ऐसे चल रहा है, गैर महसूस तरीके से भाग रहा, गैर महसूस तरीके से। वो कैसे? बाल का बढ़ना आपको पता लगता है? बाल बढ़ते तो पता चलता है। ये और बात है कि दाढ़ी जब ज्यादा बढ़ जाती है तो हफ्ते में एक मरतबा ख्याल आता है उसको कि अब तो बढ़ गई, दिखाई देने लगती है, वरना इसके बढ़ने का कोई पता नहीं चलता, महसूस नहीं होता किस रफ्तार से बढ़ रही है। वैसे ही जमाना आपके सरों से तेजी से गुजर रहा है, आपको कुछ खबर नहीं हो रही कितनी तेजी से, और जब से ये हालात चल रहे हैं वो तो और तेजी से गुजर रहा है, पता ही नहीं चल रहा है दुनिया में क्या हो रहा है। तो ऐसे में अगर जमाने की रफ्तार से रफ्तार मिलाओगे, जो कुछ जमाना कर रहा है वही करेंगे, जैसा जमाना चल रहा है वैसे ही चलेंगे। हत्ता कि ये जुमले भी बोले जाने लगे, हम क्या करें भाई, जमाना जैसे कर रहा है वैसे ही तो करेंगे, जमाने में साथ ही तो चलेंगे। अरे जमाने के साथ क्यों चल रहे हो भाई? आपको जमाने के साथ चलने के लिए नहीं कहा गया, आपको इमाम जमाना के साथ चलने को कहा गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। तो ऐसे में आपको तो परेशान नहीं होना चाहिए, दुनिया की कोई कौम परेशान हो तो, क्योंकि हालात के जमाने के तहत जितने भी इस तरीके की वो आते हैं आफात, उससे कोई परेशान हो तो हो। मैं शुरू में ये अर्ज कर चुका कि हाँ जमाने के इमाम के साए में रहिए, और उनका साया तो हर चाहने वाले पे है, और उनका साया एक लम्हे के लिए भी हट जाता ना तो हमारा वजूद जो है इस दुनिया से खत्म हो जाता है। एक लम्हे, क्यों? वो तो खुद फरमाते हमारे चाहने वालों के लिए मेरी गैबत नहीं है। क्या फरमान है? मौला फरमाते हमारे चाहने वालों के लिए मेरी गैबत नहीं है, हमारे वजूद का फायदा उन्हें उसी तरीके से मिल रहा है जिस तरीके से बादलों की ओट में रहने वाले सूरज से मिलता है। तो क्या उस वक्त सूरज नहीं होता? सूरज होता है, हमारी आंखें नहीं देख रही होती। मौला फरमाते उसी तरीके से मेरे फयूज़ और बरक़ात हमारे चाहने वालों। सुभान अल्लाह। और ये अदा का फर्ज जो है, ये जिम्मेदारी, मैं तो कहता हूँ कि ये तो भी वो उसी वारिस की है ना
जो पर्दे गैब में बैठा हुआ है। आप क्या कहते हैं, वारिस हुसैन आ जाइए, मुंतखब खून हुसैन आ जाइए, ये तो जिम्मेदारी उनकी है। हमें इसमें ज्यादा वो नहीं करना चाहिए कि साहब अब क्या होगा, नहीं अब क्या होगा क्या मतलब, जो वारिस है वो बैठा हुआ वो देख रहा कैसे क्या होगा, और बैठा देख ही नहीं रहा है बल्कि खून के अल्लाह पूरी ज़ियारत नाहिया उठा के देखी। पूरा जैसे लगता है मक्तल उठा के रख दिया गया, पूरा मक्तल उठा के सलाम हो जिनके बंदूक जिनका जसद अतहर न घोड़े की रीन पर अल्लाह। अभी तज़किरा किया जनाब हुर का, आज यकीनन 3 तारीख हो गई, देखते देखते अभी फलक पे चांद नमूदार हुआ, आज 3 तारीख हो गई, 3 मुहर्रम हो गई। असहाब हुसैनी का जब तज़किरा आता है ना, कुछ नाम ऐसे हैं, यकीन जानिए कि जिस वक्त, हालांकि नहीं मुहर्रम के दिनों में मसाइब के हवाले से वो दोहराए जाते हैं, बहुत तारीफ नहीं पड़ी जाती, जैसे जनाब ज़ुहैर इब्न क़ैस, जैसे हबीब इब्न मज़ार, मुस्लिम इब्न औसजा, ये वो नाम है अली, ये वो नाम है। हालांकि करबला का हर शहीद ऐसा है, मुकम्मल तारीख है। जनाब ज़ुहैर के लिए मिलता है कि वो काफिले के हमरा मदीने से नहीं आए थे, मदीने से नहीं, अब चले थे कि मजलूम करबला के साथ मदीने से करबला तक आए। कहते असनाए राह जहां हुसैन का खैमा लगता था, उससे कहीं दूर जनाब ज़ुहैर खैमा लगाते कि कहीं ऐसा ना हो कि मौला मुझे तलब कर। हत्ता कि एक वक्त ऐसा आया कि जब मौला ने महसूस कर लिया कि ज़ुहैर दूर दूर चल रहे हैं और करीब नहीं आ रहे हैं, तो 2 रवायतें हैं। एक रवायत में ये है तो किसी को भेजा, और एक रवायत में है कि खुद जनाब अली अकबर को भेजा। अब आप समझ सकते हैं कि हुसैन को कितने प्यारे रहे होंगे, ज़ुहैर कैम की जनाब अली अकबर के जरिए बुला रहे हैं। कहते हैं कि जिस वक्त कासिद गया तो उस वक्त जनाब ज़ुहैर खैमे में खाना तनावुल फरमा रहे थे। मौला का पैगाम सुनाया उसने, ज़ुहैर तुम्हें आका ने बुलाया है। मर्तबा जनाब ज़ुहैर ने कहा, हाँ जरूर आका ने बुलाया है मुझे, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। आप ज़ौजा से मुखातब हुए, तुम्हें पता है कि मैं मौला के खैमे से दूर दूर क्यों चल रहा था? उसने पूछा क्यों? कहा इस वजह से कि मुझे मालूम है कि हुसैन जिस रास्ते पे जा रहे हैं वो रास्ता कत्ल का रास्ता है, वो शहीद हो जाने का रास्ता है, और मुझे लग रहा है कि अब शायद कि अब पैगाम आ ही चुका है, तो मैं भी उसी रास्ते पे चला जाऊं, लेकिन मेरे बाद तुम्हारा क्या होगा? बस ये सुनना था। एक मर्तबा ज़ौजा उठी, ज़ुहैर तुम मेरे बारे में ख्याल कर रहे हो, इस वजह से दूर दूर चल रहे हो कि मैं मौला के खैमे से दूर दूर रहूं? हाँ तुम शहीद हो जाओ, कोई परवाह नहीं है मुझे, बाद में मैं आका के जितने भी अफराद खानवादा उनके साथ हो जाऊं। एक मर्तबा पलट के ज़ुहैर ने कहा, तुम्हें मालूम है अरब का दस्तूर ये है कि बाद कत्ल वो औरतों को असीर बना लेते हैं। अल्लाह अकबर, औरतों को असीर बना लेते। मैं नहीं चाहता कि मेरे बाद तुम असीर हो। मैं कहूँगा ज़ुहैर तुम्हें अपने ज़ौजा की तो फिक्र है, लेकिन अहले हरम बाद में असीर हो गए, जिनके साथ रहने की तवक्को कर रही है। आज़ादारों के बाद जनाब ज़ुहैर के लिए मिलता ये है कि फिर कहा मैं तो सिर्फ इम्तिहानन ये कह रहा था, मैं तो जज्बा देखना चाह रहा था। बस 2-3 जुमले सुने आज़ादारों की, कैसे कैसे हुसैन वो मुंतखब करके जो हीरे उठा के लेके आए थे, किस कदर कुर्बानी का जज्बा दिलों में मौजूद था कि जनाब ज़ुहैर कहते अच्छा तो एक काम करते हैं, गुलाम के जरिए तुम्हें कूफे भिजा देते, जाओ तुम कूफे चली जाओ, बस ये करना कि मेरे बाद, मेरी शहादत के बाद मेरे कफन का इंतजाम कर देना जब तुम्हें इत्तला मिले। आज़ादारों चली गई ज़ौजा, लेकिन वो इंतजार करती रही कि वो वक्त आए कि जब कोई सुनानी ये लेके आए कि करबला में सब मारे गए, करबला में कोई बाकी नहीं।
ये अज़ादारों, जैसे ही उसे ये खबर लगी कि ज़ुहैर मारे गए तो उसने गुलाम से कहा कि इतना कर ले कि ये कफन ले जा, क्योंकि वसीयत भी थी, और ये कफन ले जाके देके आ जा, आखिरी तेरी खिदमत है। कहते गुलाम लेके चला। जैसे ही करबला के वन में पहुंचा उसने कफन समेटा और फिर वापस कूफे चला गया। जैसे ही राजा ने देखा, कहा तूने आखिरी काम, मैंने कहा था कि आखिरी काम है, इसके बाद मैं तुझे आजाद कर दूंगी, तूने कफन नहीं पहनाया। एक मर्तबा रो के कहता है मैं कफन किसको किसको पहनाता, अरे एक लाशा हो तो पहनाता मैं, अरे नबी का नवासा में गोरा कफन पढ़ा, अरे मेरी गैरत ने गवारा नहीं किया कि मैं अपने आका को जो कफन पहनाऊं, अरे रसूल का नवासा में गोरा कफन पढ़ा। एक मर्तबा ज़ौजा ने सरो सीना पीटा, हाय या अल्लाह हम सबकी इबादत को फर्श-ए-अज़ा पर बैठे हुए तमाम मोमिन की हाजत को या अल्लाह जहाँ जहाँ भी मोमिन आबाद हो सबके जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा, मोमिन की मुश्किलात को आसान फरमा, जो बीमार और अलील मोमिन और मोमिनात हो सब शिफाए कामिल वाजिब। या अल्लाह आज के दाई मजलिस जनाब मुशर्रफ साहब की तौफीक़ात मेरे मालिक उन्हें मुकम्मल सेहत इनायत फरमाए, उनके तमाम मरहूमीन के दर्जात को आमीन। या अल्लाह हम सब के इस पुरसे को बारगाह हज़रत हुज्जत में कबूलियत का